Good afternoon, and today we are going to continue with the chapter of geography, India, size and location. This chapter is almost near completion. Only few topics remain to be discussed, and there are few 1 or 2 mark questions which is in the textbook that needs to be completed. जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करना बचा है, और बुक रीडिंग करके एक दो अगर हम लोगों का कुछ छूट रहा है तो वो हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे. टुडे वी हैव लर्न अबाउट स्टैंडर्ड मेरिडियन. Standard meridian is 82 degrees 13 minutes east longitude. This is one more question. Which is the standard meridian of India? The answer will be 82 degrees 30 minutes east. All right. Likewise, what is the standard meridian? This question we don't know what is the standard meridian. But we have learned today that all meridians are equal, and any meridian can be chosen, can be selected as a standard meridian. And a meridian which is chosen or selected to calculate the standard time is called as a standard meridian. Most simple answer for a standard meridian is that from standard meridian we calculate the standard time. So what is standard meridian? The meridian which can be used Please mute yourself. If it is not needed, then you please mute yourself. You mute yourself, and whenever it is needed, only at that time, you unmute and you speak. So, the meridian which can be used to calculate the standard time is called, and then you have to write the answer yourself. All right. So, today in the class, we have learned about 82 degrees 30 minutes east. So why 82 degrees 30 minutes east is selected? Why 82 degrees 30 minutes east longitude is selected? Shashwat, you mute yourself. Okay, fine. 82 degree 30 minutes east is selected. So graphically we have done. We have made a small map of India. Very small map of India we have drawn, and from there we come to know that one is 75 degrees, another one is 90 degrees, and in between 75 and 90 we found, in between 75 and 90 degree east we have found 82.5 degrees. So in mathematical terms we can say that 82 degree 30 minute east longitude is also a multiple or divisible by 15 degree. 15 के टेबल में ये भी जो है एक फैक्टर हो सकते हैं, और ये डिविजिबल भी है 15 से. 15 मीन्स 1 hour interval. So there are 24 time zones of the earth, or standard time zones of the earth at 15 डिग्री और 1 hour इंटरवल. एक घंटा का अगर हम 24 टाइम जोन निकालते हैं अर्थ का,
तो वो सब 15 डिग्री के इंटरवल में हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं। उसमें ही हमको 75 और 90 तो आसानी से मिल जाएगा 15 का 9 मल्टीपल, लेकिन इनके सेंटर में 82.5 है, वो भी इन दोनों के बीच में ही एकदम एग्जैक्टली आते हैं। ठीक है, एक और रीजन है 68 और 97 का भी हाफ 82.5 ही होता है। If we consider westernmost part of Gujarat touching 68 degrees and easternmost part of Arunachal Pradesh touching 97 degrees. Okay? 97 degrees. We have neglected the fraction, 0.97 25 minutes. We have neglected that. Here 68 7 minutes east. We have neglected that, but we are considering only two whole numbers of 68 and 97. Then also 82.5 is centrally located. Let us prove how it is centrally located. Say 97 degree minus 68 degrees. The answer will be 29 degrees. The answer will be 29 degrees. Now 29 by 2 is 14.5 degree. 29 by 2 is 14.5 degree. So if we add 68 plus 14.5, I am just giving a blank space to write down the answer. 68 degree plus 14.5 degree, we get the answer. Another one is 97 degree minus 14.5. If you calculate these two, the answer will, you will get the answer. Who can tell me? You can unmute. I have allowed you to unmute, and you can also reply through the chat box. 68 and 97. These are the two limits of our longitudinal extent. Our country extends from 68 degree to 97 degree. All right. That is one statement. And in between these two extreme longitudes, 82.5 is centrally located. So we are proving here 97 and 68 we have deducted, subtracted it, then we get the answer as 29 degree. 29 by 2 is 14.5 degree. So 68 plus 14.5, we will get our answer. Again 97 minus 14.5, we will get our answer 82.5 degree. So it proves central location of 82.5 degrees. So we have selected 82.5 degree as our standard meridian. And what we do with the standard meridian? What we do with the standard meridian of India? We calculate the standard time of. We calculate standard time of India, which is that? Yes, Indian Standard Time. So, from which place it actually passes? 82.5 degree passes through a particular place or a particular district is there in Uttar Pradesh. You can unmute and you can tell me. Only 13 students have joined. Out of 47, only 13 have joined. Very, very, very poor actually attendance. Any answer? 82.5 degree. particular location जगह है उसका नाम. That place is Mirzapur in Uttar Pradesh. All right. Today we have learned about Greenwich also. Greenwich is nothing but a place near London where the observatory is there. In an observatory, there are a lot of scientific instruments to track the movement of the sun, how it actually casts its shadow, all right, how the season changes. So all those kind of weather-related experiments, all those astronomical observations are done through Greenwich. And the prime meridian also is
passing through that particular city of Greenwich in London, and which is treated as the prime meridian of our Earth. Our Earth's prime meridian passes through Greenwich. And why we say it as mean time? Because in summer days are long, in winter the days are short. All right, at some point of time they become equal. Otherwise, rest of the year there is change of length of day and night, and therefore the mean time is calculated to understand about this concept of time. अभी गया में भी दिन बड़े हो जाते हैं, और विंटर में जो है गया में दिन छोटे रात बड़े हो जाते हैं। जितना इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की तरफ या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएंगे, उतना दिन और रात का अंतर जो है वेल मार्क्ड होता है। तो ये वेरिएशन है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट में, और इसीलिए हम लोग मीन टाइम का कंसेप्ट को लेके पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब हम स्कूल में आए, कॉलेज में आए, तो हमको मीन टाइम चाहिए। लेकिन अगर तुम नासा के साइंटिस्ट हो और इंडियन स्पेस रिसर्च के साइंटिस्ट हो, उनके पास जो है इससे भी परफेक्ट डिवाइसेस है, वो और ज्यादा परफेक्ट मतलब जो है टाइम कीपिंग करते हैं, क्योंकि उनके स्पेसक्राफ्ट जो है मून तक जाते हैं, मार्स तक जाते हैं। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी एरर अगर होगा तो वो मून को मिस कर जाएगा, वो मार्स को मिस कर जाएगा, और उनके सिग्नल हमारे अर्थ में रिसीव नहीं होंगे। तो वो टाइम को और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके परफेक्ट किए हैं, जो हमारे अर्थ में अपने डेली रूटीन में इतना परफेक्ट टाइम कीपिंग की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा एरर होता है तो हम घड़ी को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया छोटा सा एक टॉपिक, जो आज का टॉपिक था स्टैंडर्ड मेरिडियन को लेकर। Today I wanted to discuss one more question in the classroom. I was telling you about 12 hour day, and suppose here it is 12 and 12, and another walk it is 14 and 10. 14 hours, 10 hours. And I was trying to explain that in equator. Yeah? In equator, the length of day and night is 12 hours each. So people living in equator will not notice the variation in day and night. दिन और रात का अंतर इक्वेटर में रहने वाले या इक्वेटर के नजदीक रहने वाले लोगों को फर्क ज्यादा महसूस नहीं होता है। लेकिन गया में रहते हैं तो अभी पता चल जाता है, गया में जो है करीब करीब 13 to 14 आवर्स का हमको जो है डे टाइम मिल जा रहा है, और सेम डे में नाइट केवल जो है 10 to 10.5 आवर्स का हमको मिल रहा है नाइट टाइम। तो ये जो है यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं कि दिन और रात में अंतर। Then there is one question. There is one question in your book, the duration of day and night is hardly felt as Kanyakumari. One question in your textbook is there, the duration of day and night is hardly felt at Kanyakumari, but not so in Kashmir. This is statement one. This is the question. I hope you can find this question in your textbook also. Let us first understand it in Hindi. How to do it? If we draw it, we draw a very small part of India. To try to here we have each meter. This is the place we have Kanyakumari,
and this is the place we have Kashmir. All right. So this place is 8 degree north, and this is 0 degree equator. So Kanyakumari is quite close to equator. What I mean to say is that Kanyakumari is only 8 degree away from equator, whereas Kashmir is almost 30 degree north. So it is 30 degree away from equator. And what is this? This one? This is 23.5 degree north. Tropic of Tropic of Cancer here. So from equator, Tropic of Cancer, and even beyond that, as we are moving further towards the north direction, Kashmir approximately 30-32 degree north. So it is away from equator. So let us read the question. The duration of day and night is already felt at Kanyakumari. It suggests that if we stay in Kanyakumari all throughout the year, the length of day and night will not be much. They will always remain equal. यहाँ अगर हम कन्याकुमारी में रहते हैं तो दिन और रात 12-12 घंटे का ही महसूस होगा. As we move from Kanyakumari to Kashmir, in summer season we will have a longer daytime in Kashmir, and in the winter we will have a longer night in Kashmir. But there is no change of day and night, length of day and night for Kanyakumari. Summer season में भी 12 घंटा का दिन रात होगा, winter में भी 12 घंटा का दिन रात होगा. What is the reason? The reason is that Kanyakumari is located much closer to equator. It is only 8 degree north, whereas Kashmir is 30 degrees far away from equator. So the duration of day and night is well marked in Kashmir. This is the question and the explanation. In case you have any doubt, अगर तुम्हारे पास कोई डाउट है तो तुम यहाँ अभी अनम्यूट करके भी बोल सकते हो. तुम चैट सेगमेंट में भी तुम अपना लिख सकते हो कुछ अगर डाउट है तो ये एक क्वेश्चन था जिसको आज हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे, क्लास में नहीं हो पाया. अभी लिख भी दिया है क्वेश्चन, और बुक से भी तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा. वो हम लोगों को जो है अगर ऑफलाइन क्लास हुआ तो वहां पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. और रिवीजन जो है वो तुम लोग का पीरियोडिक के लिए, और साथ में अगर और भी किसी को पर्सनल कोई अगर डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम इन द स्कूल ऑफलाइन मोड. तुम चैट में अगर अभी लिखना चाहते हो कोई डाउट तो लिख सकते हो. तुम व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेज सकते हो तो वो भी अपना तुम जो है पूछ सकते हो. ठीक है. अब ये चैप्टर का एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे. ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वाला क्वेश्चन हो गया. यू हैव अंडरस्टूड. और वो अभी फील करते हैं द लेंथ ऑफ डे इज मच लॉन्गर इन गया. हमारे गया से भी ज्यादा बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर का, बिकॉज गया अगर मान लो 24 डिग्री नॉर्थ है तो जम्मू कश्मीर 30 डिग्री नॉर्थ है. तो वहां दिन थोड़े और बड़े हैं गया के कंपेरिजन, और वहां के रात छोटे हो गए. दोनों मिला के 24 ही होगा. और आज क्लास में भी बोल रहे थे ऐसे ही डे और नाइट का वेरिएशन जो है वो नॉर्थ पोल में 6 मंथ का डे और साउथ पोल में 6 मंथ का नाइट. ये कंसेप्ट को हम लोग क्लास में ही जानेंगे, डिस्कस करेंगे. एक टॉपिक लिखते हैं इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये थोड़ा सा हिस्ट्री का टॉपिक है. इंडिया जब आजाद हुआ था
तो उसी समय वो इंडिया था या उस समय जो है वो ब्रिटिश इंडिया था? चलिए ये क्वेश्चन है। Was it India that became free, or it was the British India which freed itself and then it became India? ऑब्वियसली हम लोग ब्रिटिश इंडिया ही उस समय था, वो हम लोगों को जो है वो हमारे कंट्री को रूल कर रहे थे। और उस समय हमारे कंट्री में दो और तरह से जो है इंडिया को हम लोग जो है उस समय पता करेंगे, ठीक है। इंडिया जो है एक हो गया नंबर वन, ब्रिटिश इंडिया। दो हो गए प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स, ये दो ही था उस समय, एक तो ब्रिटेन रूल्ड इंडिया और दूसरा प्रिंसली स्टेट था। और ब्रिटिश इंडिया को वो अपने तरफ से इसको बोलते थे प्रोविंस। ब्रिटिश इंडिया वो एक एक इलाके को, एक एक पार्ट को प्रोविंस बोलते थे। तो उत्तर प्रदेश वाज नॉर्दर्न प्रोविंस, मध्य प्रदेश वाज सेंट्रल प्रोविंस। तो जो है ये वर्ड से इंडिया को जो है डिनोट करते थे या रेफर करते थे। तो इंडिया में प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स जो है वो ब्रिटिश के साथ फ्रेंडशिप करके वो अंग्रेजों को जो है अपना दोस्त बना लिए थे। और उस समय जो है जिनके साथ अंग्रेजों की दोस्ती अच्छी थी, उन प्रिंसेस या उनके प्रिंसली स्टेट जो है वो सेफ थे, उनको अंग्रेज लोग अटैक नहीं किए। अदरवाइज क्या हुआ, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अवध को एनेक्स कर लिया, ऐसे ही अगर किसी का अपना बेटा नहीं हुआ तो उनका अगर कोई मतलब हायर नेचुरल हायर अगर नहीं है तो वो टेरिटरी भी ब्रिटिश का हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से जो है वो ब्रिटिश लोग बड़ी चालाकी से इंडिया को कब्जा कर रहे थे, हथियार ले रहे थे अपने। और हमारे कंट्री में भी इनकी कुछ चालाकी को जो समझ गए थे और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को जो एक्सेप्ट कर लिए, वो प्रिंसली स्टेट अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट भी किए और उनसे फ्रेंडशिप भी किए। तो जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो उनका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ओथ लिए, ठीक है। तो इंडिया में एक साल, दो साल, तीन साल तक थोड़ी गड़बड़ी होती रहे। इंडिया के ये प्रिंसली स्टेट थे, इनके जो किंग थे या प्रिंस थे या रॉयल फैमिली के मेंबर थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इंडियन गवर्नमेंट चाह रहे थे कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया है तो कोई राजा महाराजा, कोई इक्वल अनइक्वल या रिच या किसी को फेवर देना नहीं है, सबको इक्वल बनाना है। ब्रिटेन से हम लोग जब हम लोग ने इंडिपेंडेंस को जो है अचीव किए हैं स्ट्रगल करके, तो वो प्रिंसली स्टेट्स को भी वार्निंग दे दिए, नोटिस दे दिए कि तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है रूल फॉलो करो और उसमें इंडिया के पार्ट बन जाओ, ना कि इंडिपेंडेंट तुम जो है प्रिंसली स्टेट बनाओ। तो मैक्सिमम जितने प्रिंस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर लिए थे। एक दो स्टेट जो है थोड़ा टाइम लिए, उसमें कोई पटियाला होगा, कोई हैदराबाद होगा, कोई मैसूर होगा, इस तरह से दो तीन जगह थे। वो हिस्ट्री टीचर हमसे बेहतर बता देंगे कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे जो थोड़ा वक्त लिए, थोड़ा और टाइम लेने के बाद इंडिया के साथ ज्वाइन किए। आज जो 2024 में हमको इंडिया दिखता है, यहाँ पुराने राजा के महल जो भी बचे हुए हैं, बनारस में रामनगर में एक किला है, और यहाँ टेकारी का भी महाराज का अपना उनका फोर्ट है, और इधर उधर रामगढ़ में भी फोर्ट है कुछ राजा के। और इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि ग्वालियर के महाराज है, मैसूर के महाराज है, जयपुर के महाराज है। तो ये उनके किले, इनके फोर्ट अभी भी हमारे कंट्री में है। और ये सब जो है हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल ये साइट्स है। और इनके पैलेसेस जो है बहुत सारे आज के डेट में म्यूजियम में भी कन्वर्ट हो गए हैं। लोग वहां जाते हैं और वहां पे जो है रॉयल फैमिली के एस्टेट, उनके बिल्डिंग, उनके रूम्स, उनके शानो शौकत देखते हैं।
ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो है, हो सकता है कि वो जयपुर का किला देख के आया हो, मैसूर का पैलेस देखा हो, ग्वालियर में भी बहुत बड़ा सा फोर्ट है ना। तो ये हमारे कंट्री में फोर्ट्स एंड पैलेसेस की कोई कमी नहीं है, ये हमारे हिस्ट्री का एक invariable part है। तो इंडिया at the time of independence was divided into the provinces of British India, the princely states, and rest of India who suitably attained freedom and became part of the इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। ये हिस्ट्री में है, ठीक है। तो हमको हिस्ट्री में जो इंडिया के बारे में जानकारी मिलता है, तो उसमें एक हम खाली एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। ये जगह का नाम था पूरा बॉम्बे। ये बॉम्बे स्टेट था, एक एग्जाम्पल। और इधर पे एक था मैसूर, इधर एक स्टेट था हैदराबाद। हैदराबाद स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, मैसूर स्टेट हुआ करता था ब्रिटिश टाइम में। जैसे जैसे इंडिपेंडेंट हुए तो हम यहाँ केरला बना लिए, कर्नाटका बना लिए, इसको महाराष्ट्र और इसको गुजरात बना लिए, वो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह से जो है लेटर ऑन वी डिवाइडेड द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्राइटेरिया। द पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस became the basis for division of the or identification of Indian states। तो ये बॉम्बे स्टेट काफी बड़ा एरिया था, और ये बॉम्बे स्टेट हिस्टोरिकली वो बाद में चल के वो स्टेट ऑफ गुजरात बना, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बना, और बॉम्बे उसके कैपिटल बने महाराष्ट्र के। तो हिस्ट्री टीचर कैन गिव यू दिस एंटायर नैरेटिव इन ए बेटर मैनर देन मी। उनसे भी कभी अगर मौका मिले, या तुम कोई अगर हिस्ट्री बुक और एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हो तो तुमको भी ये जानकारी मिल जाएगी कि आजादी के समय में इंडिया का स्वरूप कैसा था, और उसको धीरे धीरे प्रेजेंट डे इंडिया बनाने में कितने मेहनत करने पड़े। हम एक स्टोरी जानते हैं कि जब ये प्रिंसली स्टेट्स मान नहीं रहे थे इंडिया को ज्वाइन करने के लिए, तो एक आदमी ने बड़ी एक आदमी ने बड़ी स्ट्रांगली जो है उस समय एक मूवमेंट को स्टार्ट किया, और उस आदमी का नाम था सरदार पटेल। इन्होंने इंडिया के गांवों को एकजुट किया, इंडिया के सारे प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई किया, और आज के डेट का इंडिया बनाने का सबसे बड़ा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगर पटेल उस समय नहीं होते तो आज भी इंडिया कई टुकड़ों में, कई हिस्सों में बटा हुआ रहता, कहीं राजा महाराजा का राजपाट चलता, और कहीं गांव अपने मनमानी किए होते, कहीं कोई और तरह से मुसीबत इतने सालों में जरूर कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन सरदार पटेल के जो है स्ट्रॉन्ग विल और डिटर्मिनेशन और करेज की वजह से ही पूरे इंडिया जो है आज एक सिंगल कंट्री और सिंगल स्ट्रॉन्ग इंडिया बना है, और ये फिफ्थ पावर है, इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है एक हिस्ट्री का छोटा सा पार्ट लेके हम लोग डिस्कस किए हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। अकेले हम बोल रहे हैं, और तुम्हारी तरफ से भी अगर कुछ क्वेश्चन रेज होगा या बुक पढ़ के अगर कुछ अगर मान लो तुम बोलना चाहते हो तो वो वेलकम है। तुम लोग में से कोई अगर बुक देख के अगर मान लो कोई डाउट है, वर्ड्स है, तो अभी 5 मिनट्स बच रहे हैं, तुम्हारी तरफ से अगर कुछ क्वेश्चंस है और वो रेज करते हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तुमको अनम्यूट और चैट करने के लिए जो है हम अलाउ कर रहे हैं। एकदम ये नहीं कि जो है तुम क्लास को ज्वाइन करके हो सकता है कि तुम कोई दूसरे रूम में बैठ के ये कर रहे हो। ये कन्हैया सिंह कौन है पता नहीं, ये नाम का कोई है ही नहीं। और अपने नाम से ही ज्वाइन करोगे, दूसरे दूसरे नाम से प्लीज ज्वाइन मत करना।
ज्वाइन करने से पहले खुद अपना डिवाइस के साथ अपना रीनेम कर लेना है, नेम रोल नंबर हो तो और 9D लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम उसको जो है डिस्कनेक्ट करेंगे। So I waited for another 1 or 2 minutes and no question from your side. So it suggests that only 10 students or 11 students are there with me, which is very, very less in number. In our next classes, I expect more attendance and I will expect some questions to be put forward by all of you. I will never mind a student asking questions, whether you are in offline class or online class, that I am repeating. And it can never be possible for me alone to only give one-sided lessons and you will learn from only my lessons. You must ask questions whether you have followed or not. Bye-bye from my side. Again, in the next classes, we will discuss some other topics related to geography. Then we will revise about history. We will also simultaneously start one chapter in economics, the story of village Palampur.